सो हे गाइस, माय नेम इज़ उज्जवल और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर फर्स्ट मैंडिबुलर मोलर्स. हमने मैक्सिलरी मोलर सारे कंप्लीट कर लिए. सो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो. अगर तुमने वो देखा हुआ है तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट नाउ. ओके, हियर वी कैन सी आवर. लेट्स टॉक अबाउट द राइट मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर. ओके, देखो इसके आइडेंटिफाइंग फीचर्स क्या हैं. बेसिक आइडेंटिफाइंग फीचर्स आर कि लाइक इसके 5 कस्प्स हैं, 1 2 3 4 and 5. The fifth cusp is here is our distal cusp. ठीक है, सेपरेट distal cusp present होता है यहाँ पे. Okay. Also we can see there are only 2 roots in comparison to the maxillary molar जहाँ पे they are जिसमें triple rooted tooth थे ना वो. Okay. Here we can see there are only 2 roots present. Okay. So this is our introduction to mandibular first molar. So let's straight go into the aspects now. So now let's start with the buccal aspect of our first mandibular molar. Okay, this is our buccal aspect. So let's start with the naming of the all the cusps and the root. यहाँ पे हमको दिख रहा है सबसे पहले तो 2 रूट्स हैं, है ना. यूजुअली मैक्सिलरी मोलर्स में दे आर इसमें ट्रिपल रूटेड होता था ना. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द नेमिंग. ये बकल एस्पेक्ट है. तो व्हाट वी कैन सी दीज 2 cusps are buccal cusps. Let's decide our mesial and distal aspect. How do we decide that? Root की tilt towards this side, so it means this is our distal. Okay. और this is our mesial. Okay. Now let's talk about the cusp. ये cusp कौन सा होगा? This is ये हो जाएगा हमारा mesio buccal cusp. Okay, very good. ये कौन सा cusp होगा? ये हो जाएगा हमारा डिस्टो बकल कस्प. एंड द लास्ट वन इज आवर, जो कि हमको ये दिखता है, दिस इज आवर डिस्टल कस्प. ओके, देख इफ वी लुक वेरी क्लियरली, देख अगर ध्यान से देखेगा तुझे तो लिंगवल कस्प के टिप्स भी दिख रहे होंगे. लुक हेयर. ठीक है, डिस्टो लिंगवल, मीजियो लिंगवल कस्प टिप भी दिख रहे हैं ना. मीजियो lingual cusp tip can also be seen and distolingual cusp tip can also be seen from the buccal aspect of the tooth. Okay, look at the cervical line. Cervical line is slightly towards our root. Okay, let's talk about the grooves present over here. देख यहाँ पे हमको 2 grooves दिख रहे हैं. One is this and one is this. ठीक है, so how do we name the grooves? ठीक है, ये तो कंफर्म है कि these 2 are our buccal grooves. Now we will decide कि which one is mesial buccal groove and which one is distal buccal groove. देख 2 grooves हैं. This groove is toward this side and this groove is toward this side. Okay, तो इस groove को हम नेम देंगे mesial developmental groove और इसे हम नेम देंगे distal developmental groove. Now ये जो mesial developmental groove है, it divides the distobuccal and mesiobuccal cusp. Okay, and जो distal developmental groove है, it divides the distal cusp and our distobuccal cusp. Okay, so it is very clear. So next feature is to look here. जो ये mesiobuccal cusp है, it is more wider, है ना. It is more wide than the distobuccal cusp. Mesiobuccal cusp is more wide than distobuccal cusp. Okay, so let's talk about the root. ये कौन सा रूट हो जाएगा? ये हो जाएगा mesial root और ये हो जाएगा हमारा distal root. So let's talk about the bifurcation point. ठीक है, देख cervical line से, है ना, cervical line से 3 mm नीचे the bifurcation happens. Okay, let's talk about the width of the distal cusp. देख, ठीक है, if we talk about the let's divide it into the parts. अगर इसे मैं 5 पार्ट में डिवाइड करूँ. Okay, the distal cusp covers the 1/5. The distal cusp covers 1/5 of the buccal surface. Okay, मतलब 1/5 part of buccal surface of crown is covered by distal cusp. Okay,
and the 4/5 part is covered by mesiobuccal and distobuccal cusp, where mesiobuccal cusp is slightly wider than the distobuccal cusp. So now let's talk about the contact areas. मैं इसे इरेज कर देता हूँ. ओके, सो कॉन्टैक्ट एरिया डिसाइड कैसे करते हैं हम. फर्स्ट वी डिवाइडेड इनटू द थर्ड्स. ठीक है, 1, 2 and 3. ओके, we can see the mesial contact area lies on the junction of occlusal third and middle third. Okay, and जो distal contact area lies on the middle of middle third, है ना. ये देखो, just beneath the mesial contact area, distal contact area lies in the middle of middle third. Okay, so this was about the buccal aspect of our mandibular first molar. So now let's talk about the lingual aspect of the tooth. Okay, lingual aspect में there are only 3 features that you have to remember. देख, पहले let's talk about the grooves. ठीक है, या फिर let's name them. ठीक है, let's name कर देते हैं cusp वगैरह. Okay, so we know this is our distal and this is our mesial. ये सब हम रूट के टिल से डिसाइड कर रहे हैं ना. सो देख, we can see 3 cusps here. Okay, ये हम देख सकते हैं. दिस इज आवर डिस्टल कस्प. ये हम देख रहे हैं लिंगुअल, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टो लिंगुअल कस्प एज इट ऑन द डिस्टल साइड एंड डिस्टो लिंगुअल कस्प. और ये हो जाएगा हमारा मीजियो लिंगुअल कस्प. ओके, देयर इज ओनली वन डेवलपमेंटल ग्रूव विच कैन बी सीन. सो यहाँ पे मीजियल और डिस्टल का फंडा ही नहीं है. ओके, तो इसे हम कहेंगे लिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रूव. वेरी इजी. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व कि जो इनके एंगल्स हैं, कस्प के जो एंगल हैं कस्प टिप के, दे आर ऑल ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है, इफ आई इरेज दिस लाइन, जो कस्प टिप है दे आर ऑल ऑब्ट्यूज. ओके, लुक हियर, ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं. दे ऑल मेक ऑब्ट्यूज एंगल. ओके, नाउ और अगर हम रूट की बात करें तो देर आर 2 रूट्स विच कैन बी सीन, मीजियल एंड डिस्टल. ओके, सो ये जो लिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रूव है, इट एक्ट्स एज अ डिविजन पॉइंट बिटवीन द मीजियल कस्प एंड द डिस्टल कस्प. ओके, जो ये लिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रूव है, ये 1/3 ऑफ द क्राउन तक एक्सटेंड कर जाता है. ओके ना, इट एक्सटेंड्स अप टू द 1/3 पार्ट ऑफ क्राउन. ओके, so this was about the lingual aspect. So now let's move on to the mesial aspects now. So now we will start with the mesial aspect. ठीक है, so mesial aspect में buccal और lingual को divide करने से पहले how do we divide that. ठीक है, सबसे पहले look at the cusp tip. ठीक है, देख, we can see कि this is our cusp tip, this is the highest cusp tip, है ना. This is our mesiolingual cusp. Mesiolingual cusp has the highest cusp tip. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा mesiolingual cusp. This means this side is our lingual and this is our buccal. ये हो जाएगा हमारा mesiobuccal cusp as this is our mesial aspect, है ना. Okay, cervical line is all slightly irregular. We have irregular cervical line. ठीक है, यहाँ से हमको mesial root है वही दिख रही है. We cannot see the distal root. It means it is wider. Okay, now if we talk about the buccal outline and lingual outline, I have to erase this first. ये देख, now if we can see, ये हमारा lingual outline है. लिंगुअल आउटलाइन का क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर जो है, इसे हम सब पहले थर्ड्स में डिवाइड कर देते हैं ना. देख, लिंगुअल आउटलाइन
का जो क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर है, इट इज़ इन द मिडल थर्ड. एंड वी कैन सी जो बकल आउटलाइन है ना, उसका क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर, बकल आउटलाइन का क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर लाइज ऑन द जंक्शन, है ना, इट लाइज ऑन द जंक्शन, इट लाइज ऑन द जंक्शन ऑफ सर्वाइकल एंड मिडल थर्ड. ओके. एंड हियर वी कैन सी कि जो बकल आउटलाइन है इट इज़ मोर स्ट्रेट एंड जो लिंगुअल आउटलाइन है इट इज़ मोर कर्व्ड. ठीक है. द मीजियोलिंगुअल कस्प टिप इज़ द हाईएस्ट, है ना, मीजियोलिंगुअल कस्प टिप जो है इट हैज़ द हाईएस्ट कस्प टिप. इन जो पांचों कस्प है उनमें सबसे हाईएस्ट कस्प टिप है. ओके. एंड इफ वी सी द मीजियल, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ना, दिस इज आवर मीजियल कस्प, सॉरी मीजियल एस्पेक्ट. तो यहाँ पे मीजियल मार्जिनल रिज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो मीजियल मार्जिनल रिज है इट लाइज हेयर. ठीक है, 1 mm बिलो द कस्प. ओके, 1 mm बिलो द कस्प टिप. सो दिस वॉज अबाउट द मीजियल एस्पेक्ट. ठीक है, मीजियल एस्पेक्ट में हमने सीखा कि वेर आर द crest of curvature of mesial buccal and lingual outline, and which one has the highest cusp tip and which one has the widest. जो mesiolingual cusp है ना, it is also widest. ठीक है, this and we also learned that जो mesial root है it is widest, है ना, it is wider than the lingual cusp. Okay. And we also talked about the cervical line which is irregular, है ना. Okay, so now let's move on to the distal aspect. Okay, so now let's talk about the distal aspect. Here we can see okay, so now we can talk about the distal aspect of the mandibular molar. ठीक है, the first feature is the जो distal cusps होते हैं they are smaller than the mesial cusp. वन मोर पॉइंट टू नोट कि जो रूट है इट इज़ नैरोवर देन द मीजियल रूट. डिस्टल रूट, देख डिस्टल रूट इतना है, वी कैन सी द पार्ट्स ऑफ द मीजियल रूट्स ऑल्सो. ओके, इट मीन्स जो डिस्टल रूट है इट इज़ नैरोवर, डिस्टल रूट इज नैरोवर देन द मीजियल रूट. सर्वाइकल लाइन इज इरेगुलर. ओके, लेट्स ड्रॉ अ रूट एक्सिस. ठीक है, ओके, रूट एक्सिस इज व्हाट? line passing from the apex of the root, a straight line passing from the apex. ठीक है, this is our देखिए हमारा डिस्टल एस्पेक्ट है ना, ये हमारा बकल एस्पेक्ट है और ये हमारा लिंगुअल है. दिस इज आवर, दिस कस्प इज आवर डिस्टो बकल कस्प. ये जो दिख रहा है मैं छोटा सा, इट इज आवर मीजियो बकल कस्प, है ना. ये हमारा हो जाएगा डिस्टो लिंगुअल कस्प और ये हो जाएगा हमारा मीजियो लिंगुअल कस्प. देख मीजियो लिंगुअल कस्प की जो टिप है सबसे हाईएस्ट है ना. ओके, सो और ये जो हमारा कस्प है, ठीक है, ये है हमारा डिस्टल कस्प. ओके, नाउ देख ऑलमोस्ट डिस्टल कस्प का मोस्ट ऑफ द पार्ट लाइज टुवर्ड्स द बकल एस्पेक्ट, है ना. देख ये जो रूट एक्सिस है इट लाइज टुवर्ड द बकल एस्पेक्ट मोस्टली, है ना. ओके, it was a very good feature to notice. Most of the part of distal cusp lies toward our buccal side. Okay, so this was about our one more point we have to notice, that the distal marginal ridge. ठीक है, distal marginal ridge forms an obtuse angle. ठीक है, I will draw it with black. ठीक है, it forms a obtuse angle. ठीक है. Okay, so now let's move on to the occlusal aspect now. Okay, so now let's start with the occlusal aspect of our mandibular first molar. ठीक है, सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं सारे एस्पेक्ट्स की. ठीक है, सो हाउ डू वी नेम देम? देख, वी हैव टू डिसाइड द कस्प्स फर्स्ट. देख यहाँ पे हमको दिस इज आवर, देखिए हमको डिस्टल कस्प दिख रहा है ना ऑलरेडी, है ना. सो वी कैन नेम दिस डिस्टल कस्प. तो इसका मतलब दिस इज आवर डिस्टल एस्पेक्ट. ये हो जाएगा मीजियल. ओके, और ये हो जाएगा हमारा द टू कस्प हियर वी कैन सी इट इज आवर लिंगुअल हो जाएगा. ओके, और ये हो जाएगा हमारा बकल एस्पेक्ट. नाउ नेम द कस्प. दिस इज आवर मीजियो बकल कस्प एज इट लाइज इन द बकल साइड एंड मीजियल साइड. ये हो जाएगा हमारा डिस्टो बकल कस्प.
दिस इज आवर मेसियोलिंगुअल कस्प हैज द हाईएस्ट एंड द वाइडेस्ट टूथ, sorry, highest and widest cusp. Okay, this is our distolingual cusp. Okay, so we can see the 5 cusps here, है ना? Okay, okay, now let's talk about the dimensions. Okay, देख ऑलमोस्ट जो ऑक्लूजल सरफेस से हमको रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है. ओके, नाउ आई विल ड्रॉ द बकोलिंगुअल डायमेंशन. ठीक है, बकोलिंगुअल डायमेंशन मीन्स बकल टू लिंगुअल डायमेंशन. देख दो पॉइंट्स पे हमको डायमेंशन मिलेंगे. ये देख, ये हो गया हमारा बकोलिंगुअल डायमेंशन टूवर्ड्स द मीजियल एस्पेक्ट, है ना? ओके, वन इज टूवर्ड आवर डिस्टल एस्पेक्ट. ठीक है ना? देख ये हो जाएगा हमारा बकोलिंगुअल डायमेंशन टूवर्ड द डिस्टल एस्पेक्ट, और ये हो जाएगा हमारा बकोलिंगुअल डायमेंशन टूवर्ड आवर मीजियल एस्पेक्ट. वी कैन क्लियरली सी कि जो बकोलिंगुअल डायमेंशन है टूवर्ड द मीजियल एस्पेक्ट इज मोर देन द बकोलिंगुअल डायमेंशन ऑफ द डिस्टल एस्पेक्ट. देख क्लियरली विजिबल है ना, लाइक वी कैन सी द डिस्टेंस, है ना? ओके, वी कैन सी. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्टोमीजियल डायमेंशंस. ठीक है, डिस्टोमीजियल डायमेंशन. ओके, हियर डिस्टोमीजियल डायमेंशन है, वो भी 2.2 एस्पेक्ट्स में होंगे. एक होगा टुवर्ड्स आवर लिंगुअल एंड वन इज टुवर्ड आवर बकल. देख ये क्या हो जाएगा हमारा मीजियो डिस्टल डायमेंशन टुवर्ड्स आवर लिंगुअल साइड, और ये हो जाएगा हमारा मीजियो डिस्टल डायमेंशन टुवर्ड द बकल एस्पेक्ट. क्लियरली वी कैन सी कि जो बकल एस्पेक्ट के टुवर्ड्स जो मीजियो डिस्टल डायमेंशन है इट इज मोर, है ना? एंड फॉर द बकोलिंगुअल डायमेंशन टुवर्ड्स द मीजियल साइड इज मोर. ओके, so this was about the dimensions on the occlusal aspect. So now let's talk about the cusps. Okay, देख ये हो जाएगा हमारा मीजियो बकल कस्प, ये हो जाएगा हमारा मीजियो लिंगुअल कस्प, ये हो जाएगा हमारा डिस्टोलिंगुअल कस्प. दिस इज आवर डिस्टो बकल कस्प, और ये हो जाएगा हमारा डिस्टल कस्प. देख बकल एस्पेक्ट हमको ना ज़्यादा दिखेगा इन कंपैरिजन टू द आवर लिंगुअल एस्पेक्ट. ठीक है? ओके, नाउ वी कैन सी जो मीजियो बकल कस्प है इट इज़ द लार्जेस्ट कस्प, है ना? मीजियो बकल कस्प इज द लार्जेस्ट while the mesiolingual cusp has the highest cusp tip and it is widest lingually. Okay, so this was about the surface area, है ना? buccal surface area can be seen more in comparison to the lingual surface area occlusally. Okay, so now we will talk about the grooves and the pits. Here we can see, देख let's talk about the developmental grooves. ठीक है, developmental grooves को mark करते हैं. There are 3 developmental grooves. Okay, 3 developmental grooves. First one we can see is central developmental groove. क्या है? Central developmental groove. ठीक है, हमको पता है कि ये हमारा बकल है और ये हमारा लिंगुअल है. इसका इस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन हमने पहले वाली स्लाइड में कर लिया है. ओके, ये हमारा होगा मीजियल डिस्टल एज द डिस्टल कस्प इज प्रेजेंट ओवर हियर. ओके, नाउ वी नो देयर आर 2 developmental grooves प्रेजेंट ऑन द बकल एस्पेक्ट. ये देखिए, जो 2 डेवलपमेंटल ग्रूव्स है ना, दिस वन एंड दिस वन. ओके, ये कौन सा था हमारा? मीजियो बकल डेवलपमेंटल ग्रूव, और ये कौन सा था? डिस्टो बकल डेवलपमेंटल ग्रूव. ठीक है, एंड वन इज हियर, दिस इज आवर लिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रूव्स. ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने ग्रूव्स हो गए? 3 developmental groove and plus 1 central developmental groove. It means 4 developmental grooves are present over here. देख, so now if we talk about the fossa, देख यहाँ पे 3 fossas would be present, जैसे हमारे maxillary molars में तो था. First fossa is our central fossa. Okay, this one. Okay, this is our central fossa. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा central fossa. सेकेंड वन इज आवर मीजियल ट्राइंगुलर फोसा, ये हो जाएगा हमारा मीजियल
ट्राइंगुलर फोसा, और ये बन जाएगा हमारा डिस्टल ट्राइंगुलर फोसा. ओके, नाउ इफ वी हैव टू अंडरस्टैंड द पिट्स. पिट कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? हर फोसा के बीच में प्रेजेंट होगा एक एक पिट. वी कैन सी द थ्री, वी हैव सीन द 4 डेवलपमेंटल ग्रूव्स, 3 फोसास एंड 3 पिट्स. पिट्स को मैं ब्लैक से बनाता हूँ. फर्स्ट वन इज जो कि यहाँ पे होगा एट द सेंटर ऑफ द सेंट्रल फोसा, ये हो जाएगा हमारा सेंट्रल पिट. वन वुड बी हियर ऑन द मीजियल फोसा, तो इसे कहेंगे मीजियल पिट. और एक प्रेजेंट होगा डिस्टली इन द डिस्टल ट्राइंगुलर फोसा, उसे कहेंगे डिस्टल पिट. ओके, सो दिस वाज अबाउट आवर pits, grooves and fossas. Okay, so here we complete our first mandibular molar. Okay, so thank you guys. If you like the video, subscribe to the channel.